Hello, good morning. Let's start your queries of chapter number 2. So from 1 to 30, I received a query question number 4 here. So here you need to say which are isoelectronic to one another are. So students, here it is Cn minus. So first of all, how to calculate electrons here? First of all, for Cn minus, I can say for a carbon you can consider 6, for a nitrogen you can consider 7 because atomic number you know that. And a minus sign that means કે એક electron gain કરેલો છે. So 7 plus 7 you can consider 6 plus 7, 7 plus 7 you can consider 14. For OH minus, if I say for oxygen I can write 8, for a hydrogen 1, for a minus charge 1, so total it is 10. CH3 plus I can say for a carbon it is 6. For hydrogen you can consider 3 hydrogen, so 3 minus 1 because of plus charge. So 6 plus 3, 9 minus 1. 9 minus 1 you are having 8. Now next is N2, so total you have a 14 electrons. CO you can say, so for a carbon 6, for a oxygen 8, so total 14. So आप देख रहे हो कि आपका Cn माइनस N2 और CO के अंदर 14 आ रहा है. So that is option A, D, E. So this is third one is your correct answer. Next question number 5 is also query. For any anion x minus 3, the mass number is 14. So we can indicate mass number by A symbol. That is 14. Electrons are 10. Then the number of neutrons. So students, we are having a formula. Atomic mass is equal to Z, that is the atomic number plus neutrons. So A minus Z will give you neutrons here. So A is 14. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10, मगर यहाँ पे 3 तो उसने गेन किए हैं. सो -3 करेंगे तो हमें एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो मिलेंगे. सो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स आर 7. सो 14 minus 7 will be the 7. Next, isotopes, that means के atomic number same. Isobar, that means atomic mass same. Isoelectronic, that means number of electrons same. Number of electrons same. Or isotones, that means number of neutrons same. So 30 minus 14 will give you 16. Even 31 minus 15 will give you 16. And 32 minus 16 will give you 16. So atomic mass minus atomic number will give you neutrons. So isotones में आपका आंसर ये आ जाएगा. और isoelectronic में यहाँ पे confusion है शायद. Yes, +3. So here nitrogen is having atomic number 7, +3 gain किए हैं 10, 8 plus 2 gain किए हैं. So यहाँ पे आपका आएगा शायद C plus 4. So 6 plus 4, 10. Yes. Question number 5. 6. Yes, so sorry students, this is a question number 7. So here same question, same thing you have to do. First of all, isotopes, atomic number same. Isobar, atomic mass same. Isotones, what you have to calculate? You have to calculate number of neutrons. तो यहाँ पे तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होने वाले हैं फर्स्ट के अंदर. सेकेंड के अंदर आप कर लो 76 माइनस 32, 77 माइनस 33. तो देखिए डिफरेंस एक बढ़ रहा है सेम. तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा आपका आइसोटोन्स. ओके. नाउ आइसोडायस्फीयर. सो आइसोडायस्फीयर दैट मीन्स के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आप सब्सट्रैक्शन करके जो आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए. सो यू हैव टू चेक here your neutrons, that is 235 minus 92. What it is? 235 minus 92. So it is 143. And 231 minus 90
is 141. So this will not be the answer. So for isodiasphere you can select option 1. ओके सॉरी ये तो न्यूट्रॉन्स आए, न्यूट्रॉन माइनस हमें क्या करना है, प्रोटोन. सो 143 माइनस 90, यहाँ पे आपको माइनस 90 करना है और यहाँ पे आपको माइनस 92 करना है. सो 141 माइनस, just a second, yes, 141 minus 90 will give you 51 and 143 minus 92 will give you 51. So definitely यहाँ पे आपका आंसर जो है आइसोडायस्फीयर के अंदर ये आ जाएगा, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वो सेम आने वाला है. Question number 8, that is not query. Now directly we'll go on to question number 10, 9 and 10. So students, for alpha particle you have a 2 proton, specific charge of a proton, the ratio of specific charge of proton and an alpha particle. So proton एंड अल्फ़ा पार्टिकल का रेशियो ऑलरेडी वो थियोरी में हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ 2:1. नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12. एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन 20.2. नियॉन इज़ अ मिक्सचर ऑफ two isotopes, neon 22 and neon 20. Relative abundance of heavier isotope, this is your heavier isotopes. If you consider this is your x%, then this is your 100 minus x%. So 22 multiplied by x% plus 20 multiplied by 100 minus x%. Okay, I mean 100 is equal to average atomic mass, you can say 20.2. So students, your 20 is near to what? That you have to first see. Your 20 is near to, means 20.2 is near to this. अगर मिडल 50% दोनों हो तो 21 आता है एवरेज वेट. मगर ये आंसर जो है वो 20 के नियर बाई है, मीन्स ये ज़्यादातर होगा कि ये ज़्यादातर होगा, ये आपको डिसाइड करना है. आंसर इज़ नियर टू दिस वैल्यू. ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो 20 और 20.2 का डिफरेंस बहुत ही कम है, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी 20 या फिर 10 आने की ही है. भी उसमें से ही डिसाइड कर लेता है, तो 20 और 20.2, देखिए तो 20.2 वेरी लेस डिफरेंस, तो हम 10 आंसर कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे. और क्या कर सकते हो आप, अगर ये आपको ऐसे इजी वे में नहीं डिसाइड करना है तो आप ये जो हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है, तो इसमें से आप x निकाल लो. ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे रख के दोनों का रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट कर लो. सो दिस इज़ योर 12. नेक्स्ट क्वेरी इज क्वेश्चन नंबर 13. बहुत ही इजी है ये. गैमा गिवन है 89 to 31. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आई कैन से एंड इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो चार्ज. सो यू हैव 89 प्रोटॉन, 89 इलेक्ट्रॉन और 231 माइनस 89 करेंगे, दैट इज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट रिलेशन आपको इसके अंदर बताना है. ये क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट इज ऑल्सो यू हैव अ क्वेरी. सो सी स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट. सो ये आइसोटोन्स नहीं है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं है यहाँ पे. आइसोडायस्फीयर मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन. न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 7 माइनस प्रोटॉन 6, सो आंसर इज़ 1. यहाँ पे 17 माइनस 8 हम करेंगे तो 9 आएगा और 9 माइनस 8 1, तो ये सेम आ रहा. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज आइसोडायस्फीयर. डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम. दिस इज योर 15, 16, 17. नेक्स्ट क्वेरी इज इन क्वेश्चन नंबर 17.
And 7 and 14, if mass attributed to electrons were doubled, mass attributed to electrons were double. First of all, I'll write electron, proton and neutron first. 7 electrons, 7 protons, 14 minus 7, 7 neutrons. Doubled. The mass attributed to protons were halved. The atomic mass would become approximately. So students, here, first of all, see, atomic mass is having a formula atomic number plus neutron. इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते मगर प्रोटॉन चेंज नहीं होते, तो एटॉमिक नंबर में हम प्रोटॉन जो डिस्कस कर ले तो 7 इससे हाफ हो जा रहा है, तो हम 7/2 लिख सकते हैं. यहाँ पे तो न्यूट्रॉन तो 7 है. तो आपको क्या करना है, परसेंटेज के फॉर्म में भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो परसेंटेज निकालना हो, रिड्यूस के परसेंटेज निकालना हो, तो 7 था, 3.5 रिड्यूस हुआ है. बाकी तो आपको पता ही है, ये 3.5 प्लस ये तो है आपका कितना 7, तो आप 10.5 बोल सकते हो. तो पहले 14 था, उसमें से 10.5 हुआ, सो 3.5 रिडक्शन हुआ. सो दिस इज इनिशियल, दिस इज आफ्टर रिडक्शन, मल्टीप्लाई बाई 100, सो यू आर हैविंग अ 25%. सो ये करने से आपका 25% मास जो है वो रिड्यूस हो गया. 18. The value of Planck constant 6.626 means 63 we can write. Velocity of light c 3 into 10 raised to 8 meter per second. Which value is closest to the wavelength in a meter of a quantum of light with a frequency 8 into 10 raised to 15. Here also you have to apply this formula students. म्यू अगर ये दिया है, ये दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फॉर्मूला ही डिफरेंट यूज़ करनी है. ठीक है. सो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा फाइंड करना, लैम्बडा की नियरेस्ट वैल्यू, सो सी बाई न्यू वी कैन राइट. सो डेफिनेटली सी आपको पता है, न्यू आपको पता है, तो ये मैं ऊपर ले जा रही हूँ, तो 10⁻⁻7 आएगा और 3 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर आपका 0.3 के नियर बाय आएगा. So here 3 into I can write 10⁻⁻8. So यहाँ पे आप easily ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. ये आपका क्वेश्चन नंबर 18. Let's go for 19 question number. Energy of 1 mole of photon of radiation having a frequency. So E is equal to h nu symbol you have to use 6.626, so 6.63 into 10⁻34 into न्यू है आपके पास 5 into 10⁻14. तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपको कितना मिलेगा, ये 14 आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको 20 मिल जाएगा, और 6 फाइजा जो है आपका 30 आने वाला है. सो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये कैलकुलेशन जो है आपका 6 फाइजा 30, सो 10⁻⁻20 है. यस. So if we convert this into 10⁻⁻19, then 3.3 will be the answer here in a joule. Okay. Next, see ये किलो जूल के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 3.3 into 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, तो ये 1000 ऊपर जाके हमें आंसर देगा 3.3 into 10⁻⁻22. ठीक है. So this is the energy for a 1 photon, but we have to calculate the energy for a 1 mole photon. So we have to multiply this value with 6.02 into 10⁻23. तो यहाँ पे आपका सिर्फ 10 बचने वाला है. 6 3 आपको पता ही है, 6 3 18 और 10, तो 180 के नियर बाय आंसर जो है वो आपको सिलेक्ट करना है. एग्जैक्टली ये 3 होता तो 180 आता, मगर 3.3 है तो 180 से थोड़ा ऊपर जाएंगे हम, तो 200 जो है दैट इज़ आवर आंसर हियर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20. Number 20, angular momentum is having a formula mvr is equal to nh upon 2 pi, and for a hydrogen it is in a first orbit, so h upon 2 pi is equal to value is given, that is x.
Li plus 2, lithium is having 3 atomic number, 2 electron is donated, so that is also 1 electron system, and hydrogen is also 1 electron species. This is in a first orbit, even hydrogen is in a first orbit, so value will be same. So our answer is 4 in question number 20. Let's go for 21 now. See, multiplication of electron velocity and a radius, multiplication of electron velocity and a radius for a orbit in an atom proportional to mass electron, proportional to square of mass of electron, inversely proportional. Yes, definitely. See, students, you know the formula, right? So definitely, so वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ रेडियस, जिसके अंदर मास नहीं दिया है तो हम कैसे फाइंड करें। तो पहली बात ये है कि हमने फार्मूला डिराइव कर रखी है। एक फार्मूला ये है जिससे आप जा सकते हो, mvr इज इक्वल टू NH/2π। दूसरी फार्मूला थोड़ी टफ है, जो आपको वेलोसिटी और रेडियस की जो आपने बॉहर के अंदर डिराइव की है वो है। तो यहाँ पे आप v और r का मल्टीप्लिकेशन NH/2π और m नीचे चला जाएगा। सो नाउ यू आर क्लियर दैट रिलेशन इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। This is your question number 21. Let's go for 22 now. 22 is also your query. So radius of a shell for a hydrogen atom is then the value of n. So students, here is the formula, 0.53 n square by z. Fine. So now students, this radius we are having 761 divided by 0.53. So n is our question. So z for a hydrogen, z is 1. So you just divide this by 0.50. ओके, तो यहाँ पे आप 1/2 लिख सकते हो, तो आपका आंसर जो है वो 8.9 आ जाएगा। ठीक है, यस। तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये कैसे हम सॉल्व कर ले 8.9, तो आप राउंड ऑफ हम 9 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकाल के हमारी n की वैल्यू 3 आ जाने वाली है। तो पहली बात ये है कि ये आपका है 4.76, तो यहाँ पे आप 4.8 कर लो। नीचे 0.53 थे, तो उसको आप हाफ ले सकते हो। ठीक है, तो हाफ आप ऊपर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 4.8 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज़ नियरली 9.6। ओके, तो आपने ये इंक्रीज़ किया है नंबर, तो ये 0.6 को निकाल के आप राउंड ऑफ 9 सोच सकते हो, या फिर आप सोचो 10 भी सोच लो, तो भी आपको पता चल जाएगा कि n स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकलने के बाद आपका आंसर जो है वो 3 के नियर बाय आएगा, क्योंकि 4 में तो 16 है, 16 और 10 के 16 जो है वो 4 के लिए आएगा, 10 मीन्स नियरेस्ट 9 है, तो उसमें 3 आंसर आएगा। ठीक है, यस, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23 नाउ। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, रेडियस ऑफ, देखिए आपको रेडियस के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना कि रेडियस की फॉर्मूला आपको याद ही रह जाए। 0.53 n square by z. So Bohr's atomic model of radius of a first orbit of hydrogen is given, then the radius of a third orbit. So this is the formula when you kept hydrogen, means that is in a first orbit, so n is equal to 1, atomic number is 1. तो यही आएगा आपका आंसर 0.053, सॉरी, क्योंकि 0.53 ले रहे हो तो एमस्ट्रॉन्ग में आंसर आएगा, 0.053 ले रहे हो तो नैनोमीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। सो 0.053 फॉर लिथियम +2, सो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपका 3, सो 0.053 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे आंसर आपका 0.16 के नियर बाय आएगा। तो ये आप ले सकते हो ऑप्शन 1। कैसे, तो आप ये सोचो कि आप 53 ले लो, सिर्फ 53 को 3 से डिवाइड करो, 16 3 ज़ा 48, 17 3 ज़ा 15, तो 17 के नियर बाय है। ठीक है, 17 के नियर बाय है, तो इजीली आप डिसाइड कर सकते हो ये। फर्स्ट 3 रेडियस रेशियो ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। See, radius is having a formula 0.53 n square by z. So radius is directly proportional to n square and radius is inversely proportional to z.
सो एन स्क्वायर के अंदर हम जाएंगे तो 1 के स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम 1 स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 ले लेंगे तो 4 आएगा और 3 ले लेंगे तो 9. सो अवर आंसर इज थर्ड वन इन क्वेश्चन नंबर 24. This is 25. I think so. Now you can easily solve this R2 and R5. So this is for second orbit. This is for fifth orbit. Just now I said लिथियम है तो एटॉमिक नंबर सेम आएगा. यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर ले लो, यहाँ पे आप 5 का स्क्वायर ले लो. सो योर आंसर इज 4:25. बी 24, 25. ठीक है, तो ये रेडियस के हिसाब से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो 26 to 30 you can solve. Otherwise, if you cannot able to solve, please meet me, okay, and we will solve that query also. Thank you.